वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। और आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में एक इवेंट रखा जिसके अंदर उन्होंने बड़े बड़े ऑटोमेकर्स जैसे फोर्ड के सीईओ, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जैसे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के सेक्रेटरी शॉन डफी, इन सबको बुलाया और फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स पर बात की। बेसिकली कैफे स्टैंडर्ड्स को चेंज करने की बात की गई है। ये प्रपोजल रखा गया है, पर हो सकता है कि अगले साल फाइनलाइज कर दिया जाए। Their way. This was not easy. And people were brainwashed. This is a green new scam. And people were paying too much for a car that didn't work as well. And now they're going to have a great car that's going to be environmentally friendly, but it's going to cost you a lot less and it's going to work great. All of the nonsense is being taken out of the cars. So, Secretary Duffy, could you say a few words? Thank you, Mr. President. So yesterday at the cabinet meeting, the president was talking about affordability, and the way that Democrats talk about affordability is a lie. Today is a perfect example of that. So these CAFE standards used what was contrary to the law. The Congress set a rule that says you have to look at combustion engines. Biden and Buttigieg actually did an analysis using... I'm sorry. Buttigieg used EVs and hybrids to come up with a 62 mile an hour per gallon standard, which I think the car companies will tell you is completely unattainable. So they spent a lot of money on technology trying to meet the unattainable standard, driving up the cost of a car, number one. And then number two, if they couldn't meet the unattainable standard, they had to trade for carbon, costing billions of dollars, and again, driving up the price of the cars. So, Mr. President, what Democrats were doing were not making cars more affordable, they were making them less affordable. The consequence of that is going to be that more Americans can afford to buy a new car, which means they're going to be safer on the roads because of all the great new technology we have that save lives. So we'll have less death on American roads. These rules are going to allow the automakers to make vehicles that Americans want to purchase, not vehicles that Joe Biden and Buttigieg wants them to build, which is important. But also, this is important for American jobs. The more cars we sell, the more jobs we have in this country. And so this is jobs, this is freedom. And this is common sense, Mr. President. So thank you for your leadership, and I appreciate what the Senate did with the big beautiful bill and what we've done here today. So thank you, Mr. very President. much. कैफे का मतलब होता है दोस्तों कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। सिंपल भाषा में कि एक गाड़ी, एक लाइट ड्यूटी व्हीकल 1 गैलन गैसोलीन जलने पर कितना माइल निकालेगी। तो बाइडेन एरा में उन्होंने एक गोल सेट किया था कि भाई बाय 2031 मतलब 2031 आते आते हम चाहते हैं कि भाई 1 गैलन गैसोलीन जलने पर कार जो हैं वो कम से कम रफली 50 माइल एवरेज दे, कि मतलब 50 माइल चले। लेकिन इसी स्टैंडर्ड को अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करने को सोच रही हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अब टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव होगी तो कार भी एक्सपेंसिव होती जाएगी, और वही चीज़ अमेरिकन लोगों को अफोर्डेबल नहीं बन रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो ऑटोमेकर्स हैं वो इतनी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना करें, और हम जो फ्यूल इकोनॉमी का स्टैंडर्ड है वो गिरा रहे हैं। 1 गैलन में रफली 34.5 माइल्स अगर लाइट ड्यूटी व्हीकल कवर करता है तो ये चलेगा। तो इससे क्या होगा, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लोग कार सस्ती खरीदेंगे। So, how about Ford? Mr. President and Secretary, all the important lawmakers here, competitors, today is a victory of common sense and affordability. We're very proud of Ford to be the #1 auto producer in our country. 80% of the vehicles we sell here we make in our country. Great. And we never left, unlike many of our competitors. We're the #1 exporter, and we have the most auto factory workers. And this CAFE standard that is aligned with customer demand is the right move for a lot of reasons. We were #2 last year in EV sales. We were #3 in hybrid, and we're the leading brand for combustion. We believe that people should be able to make a choice, as you said, Mr. President, and we will invest more in affordable vehicles. This allows us to invest in affordable vehicles made in the U.S., which we will take the lead on, and will allow us to make vehicles more affordable. So thank you for making this step for all of you. और साथ ही साथ उन्होंने बात की कि अगर मेड इन अमेरिका कार्स लोग लेते हैं, बोरो करते हैं, मनी बेसिकली लोन पर लेते हैं, तो जो भी इंटरेस्ट उस कार पर होगा वो अपने इनकम टैक्स से डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही
रेवोल्यूशनरी, मैं बोलूँगा एक रेवोल्यूशन कार इंडस्ट्री में अमेरिका में आ रहा है। अब इसके दो अंजाम हो सकते हैं दोस्तों। एक तो जो अमेरिकन की अफोर्डेबिलिटी वाला किस्सा है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दूसरा जहां हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन की, वो बढ़ते हुए दिख रहा है। Allowing people to deduct. So if you go out and buy a car, and this is for middle income, but for lower income, no matter what, they never really had deductions. You know, rich people like deductions, but middle income people were never really afforded deductions, which is very unfair. You borrow money to buy a car, you're allowed to deduct the interest from your income tax. And I think that's going to be one of the most, in terms of your industry, I think it's going to be the biggest thing that we're talking about, maybe even bigger than CAFE standards. People are going to be able to borrow money, deduct it, so it's going to cost them essentially half. And they'll be... It'll help, yes sir. I think it's going to be a tremendous factory. They've never had a chance to do that before. सो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधा क्लियर कर दिया कि भाई ये जो ग्रीन स्कैम है ना, वो जो इन्वायरमेंटलिस्ट कर रहे हैं, ये सब बंद करो। हमें इंडस्ट्रीज, हमें अमेरिका में इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री को वापस लाना है, इसलिए मैंने टैरिफ लगाए हैं। अब जब ऑटो मेकर्स वापस आएंगे तो हम नहीं चाहते कि वो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, क्योंकि अब 1 गैलन में अगर 50 माइल निकालना है आपको, तो टेक्नोलॉजी भी वैसी आएगी जैसे हाइब्रिड कार देखने को मिल रही थी, ईवी कार्स देखने को मिल रही थी। तो उन्होंने कहा हम देखो, हम इतना प्रेशर नहीं करना चाहेंगे ऑटो मेकर्स को, हम उनको थोड़ी सी छूट दे देते हैं। हम चाहते हैं कि ठीक है, आप ये स्टैंडर्ड लेके चलो जिसमें 1 गैलन जलने पे 34.5 रफली जो है बाय 2031 आते आते ये हमें स्टैंडर्ड चाहिए। सो इसमें हुआ क्या कि एक तरफ ऑटो मेकर्स खुश हो गए, यार ठीक है भाई, इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं कि भाई 1 गैलन में 50 माइल निकालना है, कोई सिरदर्दी नहीं। सीधा जो है, जो ऑलरेडी कार्स बन रही हैं, खास करके गैसोलीन वाली, पहले तो क्या था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल कार्स की तरफ ज़्यादा वो मैंडेट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई पॉल्यूशन कम से कम हो और 1 गैलन जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माइल मिले कार में। लेकिन अब इस चीज़ को करने के लिए ना दोस्तों, टेक्नोलॉजी भी एक्सपेंसिव हो जाती है और कार भी एक्सपेंसिव निकलती है। अब इस चीज़ को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा कि भाई हमें दुनिया ने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है अफोर्डेबिलिटी वाला फैक्टर लेकर कि भाई सस्ता करो सब कुछ, गैस सस्ती करो, कार सस्ती करो, ग्रॉसरी सस्ती करो। तो हम वो गोल लेकर चलेंगे। ये जो ग्रीन स्कैम वाली चीज़ें हैं, ये जो एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, इस सब को हटाओ। ये ऐसा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भाई इस सब को हटाओ और हम जो है अमेरिकन को, उनके लिए कार्स अफोर्डेबल बनाएंगे, जो कि ज़रूरी है। ये बात तो सही है दोस्तों कि अमेरिका में कार बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कार नहीं है, आप काम पर नहीं जा पाओगे, ग्रॉसरी नहीं ले पाओगे, आप डॉक्टर के पास जाना है, घूमने जाना है, बच्चे हैं, फैमिली है, कोई बंदा हॉस्पिटल में पड़ा है, उसको इमरजेंसी है। मतलब कार यहाँ पर एक तरह से मैं बोलता हूँ कि अगर कोई जिगरी दोस्त है तुम्हारा तो कार है, बाकी जिगरी दोस्त बाद में आते हैं। About a car and auto, we sort of talk about just, oh, we need a car. Do you know what a car does for a family? You can take your children to school, you can go to the store, you can visit your mother, you can go to church, you can have a job, you have the flexibility that you need. A car for an American family is about a roadway to prosperity. Big deal. It's a big deal. And so by making them more affordable, making them more choice driven by what families want and need, today is a great day for the American family. तो अगर कार का दाम कम करना है तो जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ हो रही है उसको भी कम करना पड़ेगा। अब उसको जब कम करेंगे तो डेफिनेटली ऑटो मेकर्स तो खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, लो टेक्नोलॉजी यूज़ करो जो ऑलमोस्ट चल रही है, पहले से जो हो रही है थोड़ा सा उसको रिफाइन करो, कि जो गैसोलीन बेसिकली जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसको सपोर्ट करो, और ये जो ईवी वाली कार्स हैं इनको मत करो। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त एकदम रेवोल्यूशन लेकर आ रही है अमेरिका में, और ये रेवोल्यूशन दोस्तों पूरी दुनिया में फैल सकता है, क्योंकि जब भी अमेरिका में कोई चीज़ की जाती है तो बाकी दुनिया उसको फॉलो करती है। अभी तक हमें देखने को मिल रहा था कि यार ईवी का फ्यूचर है, ईवी, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरा ही उल्टा कर दिया। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई गैसोलीन यूज़ करो, है ये एनवायरमेंटलिस्ट, ये झूठ बोल रहे हैं, कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। चलो ऑटो मेकर्स को उन्होंने बुला लिया कि भाई प्लांट्स अमेरिका में बिल्ड करें और बेचें, इंडस्ट्री बचानी है, ग्लोबल वार्मिंग जाए बाढ़ में, ऐसा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। Just talking about something that's interesting. Ford
would make, and I don't want to speak for Ford because we have We're here. one of the top people right here. Mr. President, it's fine if you want to talk Big about talk. Ford. But Ford would make numerous electric cars in order to sell Yes. one Ford 150. Because they'd make all their money with a 150. Yes. And they were willing to lose money on building 2 or 3 electric cars that they couldn't sell in order to make some money on the 150, because the 150 is a monster. I'll tell you what, that no matter where you go, they love that Ford 150. Yes. But isn't it a ridiculous model when you have to build 2 or 3 cars that you know you're not going to be selling or not be selling for much in order to really do something that you should have the right to do, which is Yes. make a car that you want to make Yes. and that the market wants, right? So congratulations on the 150. Thank you. What do you Best-selling like? vehicle in the United States. Thank you, Mr. President. Just saying. Now it's 100% built in the United States. Now it's only going to do, no, but it really is, it's amazing. It's an amazing brand. Telling people to deduct, so if you go out and buy a car, and this is for middle income, but for lower income, no matter what, they never really had deductions. You know, rich people like deductions, but middle income people were never really afforded deductions, which is very unfair. You borrow money to buy a car, you're allowed to deduct the interest from your income tax. And I think that's going to be one of the most, in terms of your industry, I think it's going to be the biggest thing that we're talking about, maybe even bigger than CAFE standards. People are going to be able to borrow money, deduct it, so it's going to cost them essentially half. And they'll be, It'll help, yes, sir. I think it's going to be a tremendous factory. They've never had a chance to do that before. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिकन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप मेड इन अमेरिका कार लेते हो तो जो भी आपने लोन उस कार पर लिया है उस पर जो इंटरेस्ट बनेगी, इंटरेस्ट पेमेंट जो होगा वो आप अपने इनकम टैक्स से डिडक्ट कर लो। तो एक तरफ से देखा जाए तो यार सही भी चीज़ है। कार अफोर्डेबिलिटी के नाम पर अगर हम देखें तो यह अमेरिकन लोगों के लिए कार सस्ती होती हुई दिख रही है, लेकिन किस कॉस्ट पर? एक तो है कि पैसे की कॉस्ट, एक है जो हमारी आने वाली जनरेशन है दोस्तों, क्या उनको हम पोल्यूशन देकर जाएंगे? ये भी एक सोचने वाली बात है कि अभी तो हम कार का दाम सस्ता कर रहे हैं, लेकिन सोचो जो 1 गैलन में 50 माइल निकालना था, अब वही 1 गैलन जलेगा और सिर्फ 34 माइल निकाल कर देगा, तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा, गैस जलेगी, एयर पोल्यूशन तो बढ़ते हुए दिखेगा। वो अभी नहीं पता चलेगा, वो आने वाले वक्त में जब सब कुछ ये अगर ये ऑर्डर फाइनलाइज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो दे तरह की पोल्यूशन है। एनवायरमेंटली झूठ बोल रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, लेकिन हमें इंडस्ट्री बचानी है, हमें प्लांट्स लाने हैं, लोगों को जॉब देनी है, कार्स जो हैं उनको सस्ता करना है। तो ये रिपब्लिकन पार्टी का एक बोलते हैं आइडियोलॉजी है कि भाई इस तरह से हम करेंगे। बाकी वातावरण जो आसपास हमारी नेचर है उसको क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ऐसा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और रिपब्लिकन पार्टी का मानना है। लेकिन अगर वही बात करें एनवायरमेंटलिस्ट की, तो वो इस चीज़ को लेकर खुश नहीं है। वो इस चीज़ को लेकर डेफिनेटली आने वाले वक्त में हमें कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा कि हो सकता है प्रोटेस्ट हो, क्योंकि जहाँ अमेरिका को एक लीडर की तरह देखा जाता है कि भाई हाँ दुनिया बचानी है, अगर वही बोल दे कि हाँ छोड़ो यार एनवायरनमेंट को, इंडस्ट्री बिल्ड करो, तो सोचो बाकी कंट्रीज़ क्या करेंगी फिर। सो दोस्तों देखते हैं कि ये रेवोल्यूशन, क्या ये एक अच्छा रेवोल्यूशन निकल कर आएगा आने वाले वक्त में, या एक बुरा रेवोल्यूशन निकल कर आएगा। बाकी तो टाइम ही बताएगा। अभी तो आप कैसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट चको फटे।